Dear student of class 10th, we are doing unit 7 of our book First Fright, and in this unit we have studied about the different people or the different places. The beauty of the different places have been portrayed in this unit, and in this unit we have covered two chapters. The first one is a baker from Goa, about baker who lives in Goa. It's all about that person. And the second one is about the people. Okay, and the now third one is about Assam. We all know that Assam is a place famous for tea. Okay, so now we are going to start this chapter. Here in this chapter, there are two friends and they met each other. Okay, and they decided to go, Pranjal, and the second one is Rajveer. So he invites him. Pranjal invites Rajveer to his place, Assam, to see the beauty, to enjoy the summer vacation. So let's start our chapter. Tea from Assam. Pranjal, the youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi, and Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Okay, so now chapter starts with this, that they are in the railway station as they are moving towards Assam. Okay, so this is the scene of railway station. Clear? Let's start the chapter. Chai garam, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to the window and asked, Chai Saab, give us 2 cup, Pranjal said. So, as the vendor it came asking for chai, so Pranjal he asked for the 2 cups. They sipped and steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. And now they are sipping, and as this is cold weather and everyone enjoys the tea so much, so everyone in the compartment was drinking this tea. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Now, राजवीर ने क्या कहा कि क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ कप्स हैं, हर दिन 80 करोड़ कप्स पिए जाते हैं चाय के पूरी दुनिया में. 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं हर रोज. सो फ्यू एक्सक्लेम पॉन्जर, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर नाउ. अब ये एक्सक्लेमेशन अपना सरप्राइज शो करता है कि इट्स वेरी वेरी पॉपुलर थिंग. ओके, सो चाय बहुत पॉपुलर थिंग है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective story. So as the train pulled out of the station, and that Pranjal, he also buried his nose in his detective book again. Okay, so he was very fond of reading books, so that's why he started after reading this. After talking, then he started reading that detective story. But at that moment, he was keener on looking at the beautiful scenery. So he had that book, but he didn't read that book because that time he saw beautiful scenery outside. तो अब उसका ध्यान जो था बाहर की ओर चला गया. कीनर होता है वेरी डीप ऑब्जर्वर. ओके, सो अब उसका ध्यान बाहर की सीनरी पर चला गया. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before, as he was resident of Delhi. So Delhi में इतनी ग्रीनरी नहीं देखने को मिलती है जितनी कि आसाम में मिलती है. दिल्ली में बड़ी बड़ी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ के पर्सन के लिए ये ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी. ओके, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. नाउ अब जो वहाँ पर वो ग्रीन गार्डन था, ग्रीन ग्राउंड था, वहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी थी, तो लेकिन वहाँ बीच में अब क्या था, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, जो जहाँ पर टी के जो चाय होती है चाय के बागान थे. क्लियर? It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Now it was very beautiful scene,
एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मीन्स पीछे की साइड, जैसे बोलते हैं कि डेंसली वुडेड हिल्स, जो पहाड़ियाँ थी, डेंसली मतलब बहुत घनी पहाड़ियाँ जिनमें बहुत घने जंगल हैं, वहाँ से उसके पीछे सी व्यू था, दैट हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड, उसके पीछे क्या है, चाय की जो बागान है वो दूर दूर तक फैले हुए थे, जितनी दूर तक हमारी नज़र जा सकती थी। क्लियर? Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Now, dwarfing the tiny tea means जो टी लीव्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स थे, तो वो ड्वार्फ होता है वेरी स्मॉल, टाइनी, छोटे, ठीक है। सो दीज आर टाइनी टी प्लांट्स, दे वर टॉल स्टर्डी शेड ट्री के नीचे में, क्योंकि उनको शेड की ज़रूरत होती टी प्लांट्स को, तो बड़े बड़े प्लांट्स थे उनके, बड़े बड़े ट्री हैं, उनके शेड में ये टी प्लांट्स लगाए हुए हैं। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रो, और उनकी जो रो है, एक एक ऑर्डर में उनको ग्रो किया, बिल्कुल लाइन में, उनके बीच में बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उनके बीच में क्या है, वो जो रोज़ बनी हुई लाइनें बनी हुई है टी के बागान की, उनके बीच में बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स। तो डॉल लाइक फिगर्स किसको कहा गया है, जो वहाँ पर वुमेन, दोज हु आर वर्किंग देयर, जो लेडीज़ हैं वो डॉल की तरह, जैसे डॉल मूव करती है वहाँ पर, वो वैसे ही डॉल की तरह दूर से ऐसे लग रही जैसे डॉल्स हैं। सो एंड दे आर बिजीली, बिजीली क्यों, धीरे धीरे उनको पत्तों को तोड़ती हैं और अपने फिर उसमें बास्केट में वो रखती हैं। क्लियर? सो डॉल लाइक फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वुमेन वर्किंग इन द टी bushes. Clear? Now, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. And in the distance, अब थोड़ी दूरी पर, there was an ugly building, ugly बहुत भद्दी सी बिल्डिंग थी, with smoke, जिसमें से स्मोक निकल, billowing out means coming out of these tall chimneys. तो वहाँ पर अब जो डस्ट है वो tall chimneys से बाहर आ रही है। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation. अब वो जैसी अब देखता है राजवीर, तो जोर से चिल्लाता है कि हे टी गार्डन, जैसी प्रांजल की नज़र, राजवीर की नज़र अब टी गार्डन पर पड़ती है। तो प्रांजल, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। बट अब प्रांजल क्योंकि उसी माहौल में पैदा हुआ है, तो उसके लिए एक कॉमन सी बात थी, देयर वॉज नथिंग न्यू फॉर हिम, देयर वॉज नथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर हिम, दैट्स वाई ही डिडंट शेयर एनी एक्साइटमेंट, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं लगी। क्लियर? Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. So now, अब प्रांजल क्या कहते हैं कि ये तो बहुत, he said that this is a tea country now. असम जो है सबसे ज़्यादा प्लांटेशन, पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन जो है असम में ही होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। एंड वो कहते हैं इस तरह के तो तुम बहुत सारे गार्डन्स देखोगे जो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें याद रहेंगे। इनफ गार्डन्स, ओके। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नाउ राजवीर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था, एज आई कुड अबाउट टी, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने उसके बारे में इतना पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। और राजवीर कहते हैं कि मैंने इस बारे में पढ़ा है कि किसी को भी असली में नहीं पता है कि हु डिस्कवर टी, बट इसके बारे में बहुत से लीजेंड्स हैं। लीजेंड्स होती है बहुत सी, जैसे मान्यताएं हम कहते हैं या फिर कहानियाँ कहते हैं, लोक कथाएं। सो नाउ प्रांजल सेड, व्हाट लीजेंड्स? वेल, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. Now, Rajveer said that he had read that there was a Chinese emperor जो क्या कर रहे थे, एक बार वो पानी गर्म कर रहे थे, और गर्म करते हुए पानी में उनके पानी, उबले हुए पानी में, उबलते हुए पानी में, बर्निंग वाटर के में क्या हो गया कि जो पॉट के नीचे जो बर्न हो रही थी, ट्विग्स बर्न हो रही थी, उनमें से कुछ जो थे पत्ते वो किस में गिर गए, चाय जो थे लीव्स के
उस बॉइलिंग वाटर में गिर गए, जिससे इसको बहुत डिलीशियस फ्लेवर मिला। एंड इट इज़ सेड दैट कि वो जो पत्ते थे वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, ही वांटेड टू नो अनदर that legend. We have an Indian legend too, that is Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Now, he said that we have an Indian legend too, कि हमने एक इंडियन लीजेंड भी पढ़ा है मैंने, कि जो बोधि धर्मा थे एक एंशियंट बुद्ध एसेटिक थे, साधु थे, बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी कट ऑफ हिज आईलिड्स जो थी उनको कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत स्लीपी फील हो रहा था ड्यूरिंग मेडिटेशंस। जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनको बहुत नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स जो थी, आँखों की पलकें थी, उन्हें काट दिया था। एंड 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और ऐसा माना जाता है कि उनकी आईलिड्स से कि 10 जो थे टी प्लांट्स वो ग्रो हुए थे। और द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और क्योंकि उनको जो नींद आ रही थी तो उनकी नींद भंग हो गई जब उन्होंने अपने आईलिड्स कट किए। तो ऐसे ही माना जाता है कि वो जो टी प्लांट्स हैं उनको अगर बॉइलिंग वाटर में जो टी है, चाय है, उसको बॉयल किया जाता है तो उससे भी हमें क्या होती है, बैनिश मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। तो उससे हमारी नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एजिड एज फार बैक एज 2700 BC। अब राजवीर इसमें और ऐड करते हैं कि सबसे पहली चाय जो थी चाइना में बनी थी और चाइना में ही पी गई थी। और वो कब की बात है? दिस इज़ 2700 बिफोर क्राइस्ट। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स हमें पता है जैसे हमारी सेंचुरीज है AD एंड BC। तो BC जो टाइम पीरियड है वो बिफोर क्राइस्ट है, और जब उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो फिर AD में आ जाता है, आफ्टर डेथ। ओके, सो इन फैक्ट द वर्ड्स सच एज चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और वो कहते हैं कि दीज वर्ड्स जो है वो भी चाय और चीनी ये सब चाइनीज़ लैंग्वेज से ही आए हैं। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और जो चाय थी वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, और इसको पहले मेडिसन की तरह पिया जाता था। बेवरेज जो होती है कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे हम एज अ ड्रिंक जो हम आजकल अब की डेट में एट प्रेजेंट हम इसको एज अ बेवरेज पीते हैं, बट पहले टाइम में इसको एज मेडिसन ही पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Now the train it clattered. अब मरियानी जंक्शन की ओर जा रहा था, एंड द बॉयज़ दे कलेक्टेड। अब उन्होंने अपने लगेज को कलेक्ट किया, एंड दे पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और अपने अब क्राउडेड प्लेटफॉर्म के लिए अपने लिए रास्ता ढूंढा उन्होंने। क्लियर? पुश देयर वे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो अपना दे हैड टू push away the people, okay, to find the way because it is fully crowded. Clear? Pranjal's parents were waiting for them. As the parents were waiting for them, soon they were driving towards Dekyavari, the tea garden managed by Pranjal's father. And these gardens were managed by Pranjal's father. अब ये ढेकियाबारी में जब वो पहुंच गए तो वहाँ पर प्रांजल के जो फादर थे उन्होंने क्या किया, उनके जहाँ पर उनके फादर एज अ मैनेजर जॉब करते हैं। एंड आवर लेटर द कार वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड। एंड अब 1 घंटे बाद जो कार थी वो शार्पली अब ऑफ द मेन रोड पर पहुँच गई। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकिया बाई टी एस्टेट। दिस इज़ अ प्लेस वे हिज फादर वर्क एज मैनेजर। अब वो वहाँ पर पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of the tea bushes, and now the both sides of that road are acre of land. Okay, so all neatly pruned to the same height, and these tea bushes are pruned होता है growing। so अब ये जो टी बुशेस हैं वो नीटली बहुत सफाई से बहुत उससे अच्छे से वहाँ पर ग्रो किए हैं। ओके, सेम हाइट पर। एंड द ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। एंड उनका जो ग्रुप है टी प्लकर्स का वो बैम्बू बास्केट्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, वहाँ पर लोग हैं वो बैम्बू बास्केट्स अपनी पीठ पर कैरी करके बैठे हैं। एंड दे आर वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स प्लकिंग द नीटली स्प्रॉटेड लीव्स। और अब वो क्या कर रहे हैं, नीटली स्प्रॉटेड जो लीव्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, चुन चुन कर अपनी
पीठ में रख रही हैं, प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. Pranjal's father shows down to arrow a tractor pulling a traitor load of tea leaves to pass. अब प्रांजल के फादर वो क्या कर रहे हैं, ही शो डाउन टू अलाउ ट्रैक्टर. अपने पापा की जो प्रांजल के फादर ने गाड़ी की जो स्पीड थी उसको क्या किया, फादर को ने स्पीड को कम किया और जो एक ट्रैक्टर था उसका ट्री रोड का उसको जो ले जा रहा था उसको गुजरने के लिए रास्ता दिया. ओके, दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ अ sprouting period, isn't it, Mr. Barua? And this is the second flush. Now it means अब दिस इज़ वेरी, ये सेकंड फ्लश होता है, ये एक सीज़न होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश एंड थर्ड फ्लश. तो ये सीजन का टाइम था, तो इसमें 3 सीजन्स होते हैं, तो ये सेकंड फ्लश का टाइम था, स्प्रॉटिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं. ओके, सो इजंट इट. अब मिस्टर बरुआ जो है उनसे पूछते हैं, एंड राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. और अब वो बताते हैं कि जो सेकंड फ्लश होता है वो क्या होता है, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, मतलब मई से जो जुलाई के टाइम जो ख़त्म होता है ये जो पीरियड है. एंड इस टाइम की जो चाय होती है सबसे अच्छी होती है इस टाइम की. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. अब नाउ दिस होमवर्क का क्या मतलब है, होमवर्क से यहाँ मतलब है कि यहाँ जो प्लेस में वो आया उसके बारे में राजवीर ने बहुत इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है. क्लियर. सो बरुआ मीन्स प्रांजल के जो फादर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए इस चीज़ को लेकर, बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने इस बात को क्या कि कहा कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मोर while I am here. And he said, yes, I have done my homework very perfectly and I hope to learn much more while I am here with you people. Means अब इसके बारे में और जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और बहुत अच्छे से मैं इसके बारे में नॉलेज गेन करूँगा. So this chapter tells us all of us, all the readers, that wherever we go, we must know and learn अबाउट दैट प्लेस. उस प्लेस की जो ब्यूटी है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए और उसके जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे अब राजवीर जो है जब दिल्ली से आसाम में गया तो उसके लिए एक न्यू प्लेस था, बट वहाँ जाने से पहले ही उसने उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी एंड ही वॉज सो एक्साइटेड टू लर्न मैनी मोर थिंग्स. सो इट टेल्स दैट वी मस्ट do we must plan our visit, that we have some information about that place. Okay, so now our chapter unit 7 ended today. Thank you, have a nice day.